So today we are going to start with Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. So Water Act 1974. And the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in 1974 to provide for the prevention and control of water pollution and for the maintenance of or restoring of whole water in the country. So this Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in 1974. So this was the time when first the Water Prevention and Control of Pollution Act was passed. This act was passed for preventing and controlling the water pollution and for maintaining or restoring the water, okay, of the entire nation. The act was amended in 1988. So this act was passed on 1974 but was amended, means applied on 1988. Silent features of Water Act. What all are the silent features of Water Act? So the very first silent feature is prevention, control and reduction of water pollution. तो ये water pollution act, water prevention and control of pollution act क्यों पास हुआ था? इसके silent features क्या क्या थे? पहला है prevent करना, prevention, then control and reduction of water pollution. Okay, तो water pollution को होने से prevent करना, बचाना, अगर pollution हो रहा है तो उसको control करना, और अगर pollution already बहुत ज्यादा हो चुका है तो उसको reduce करना. The act also, second point is, the act also aims at the restoration of the wholesomeness of water. So ये act along with prevention, control and reduction of water pollution, ये restoration में भी के लिए भी पास हुआ था. पानी को restore करना भी जरूरी है, ठीक है. Third point is, the Water Act is designed to assess pollution level and punish polluters. तो Water Act इस तरह से डिजाइन किया गया कि हम वाटर का पोल्यूशन लेवल चेक कर सके, और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, either the industries, factories or vehicle owner or anyone who is responsible for the pollution of water will be punished. Okay, the central next point, fourth number point is, the central government and state governments have set up pollution control board to monitor water pollution. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेट किया ताकि हम वाटर पोल्यूशन का लेवल चेक कर सकें. फिफ्थ पॉइंट इज, द वाटर एक्ट ऑफ 1974 along with amendments in 1978 is an extensive legislation with more than 60 sections for the prevention and control of water pollution. तो ये जो एक्ट पास हुआ था 1974 में और ये अमेंड हुआ 1988 में, इसमें मोर देन 60 सेक्शंस थे, ठीक है. 60 सेक्शंस थे जो कि डील करते हैं प्रिवेंशन से, वाटर के प्रिवेंशन, वाटर पोल्यूशन से कैसे वाटर को प्रिवेंट करें, देन कैसे कंट्रोल करें हम वाटर पोल्यूशन को. इन related to prevention and control only, there are 60 sections. 60 sections were passed by the legislation. Okay, sixth point and the final point of the silent feature of Water Act is, central and state government central and state boards have been created under this act for preventing water pollution. तो सेंट्रल स्टेट बोर्ड को भी इसलिए फॉर्म किया गया वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत. सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को भी इसलिए प्रिवेंट किया, इसीलिए क्रिएट किया गया, बनाया गया, ताकि वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके, वाटर पोल्यूशन होने से बचाया जा सके वाटर को पोल्यूट होने से. So these were the silent features of Water Act. Now we are going to move with Water Pollution Cease Act, and this act was passed in 1977. Water Pollution Cease Act 1977. So the objective of this act is that anyone consuming water has to pay fees depending on the type of use as listed below. Okay, industries use water for industrial cooling, spraying in mine pits or as boiler feed.
and domestic purposes. Industries that have a treatment plant installed for treating these effluents can get a rebate of 70% on the fees payable. So अब नेक्स्ट एक्ट पास किया गया, वाटर पोल्यूशन सीज एक्ट। तो इसमें क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एज पर दिस एक्ट, and this act was passed on 1977, okay, water pollution seas act was passed on 1977, and based on this act गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई या एक्ट पास किया कि जो भी कोई भी जो वाटर यूज कर रहा है उसे उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, वाटर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 1977 से पहले वाटर टैक्स पे नहीं होता था, वाटर फ्री था। इसके बाद हमें वाटर, जैसे हमारे टैप वाटर आता है घरों में, इंडस्ट्रीज वाटर यूज करती है, फैक्ट्रीज यूज कर रही है वाटर, तो उन सबको जितना अमाउंट वो लोग यूज कर रहे हैं उस अमाउंट में वाटर का टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। सो अब जैसे जो डोमेस्टिक पर्पसेस है वो उसमें तो ज्यादा वाटर यूज नहीं होता है और उसका मतलब उसका एक सेट सीज है जो पे करना पड़ता है। बट जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या है, अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसने इंडस्ट्रीज में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, मींस जो वाटर यूज हो जा रहा है इंडस्ट्री में, आफ्टर दैट उसको ट्रीट करने के लिए और उसको फिर से रिसाइकल करने के लिए अगर प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है, देन दे हैव गिवन द रिलैक्सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑफ अबाउट 70%। तो उन्हें 70% तक का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि एज ए रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है, बिकॉज उन लोगों ने इन इंडस्ट्रीज ने या फैक्ट्रीज ने अपने इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से जो भी वाटर वो यूज कर रहे हैं उसे वो फिर आफ्टर यूजिंग इट वो उसमें से पोल्यूशन को ट्रीट करके, पोल्यूटेंट्स जो भी उसको ट्रीट करके, उसको सेग्रीगेट करके, उसको एक वेल ऑफ कंडीशन में फिर से वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को जो भी ये ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करता है फॉर ट्रीटिंग दिस polluted वाटर गेट अ रिबेट ऑफ 70% इन द सीज पेएबल, ठीक है। तो इनको 70% तक का फायदा मिलता है, रिबेट मिलता है, मतलब फिर से उनका रिफंड हो जाता है। जैसे अगर कोई एक इंडस्ट्री है वो 1000 रुपीज पे कर रही है पर डे वाटर बिल, तो उनका 700 रुपीज उनका रिबेट हो जाएगा, फिर से उनको वापस आ जाएगा, तो 300 ही उनका बिल आया। इस टाइप का गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, ओके। Next comes the function of central board. Now, what are the function of a central board regarding Water Prevention and Control of Pollution Act? Water Prevention and Control Act के तहत central board का क्या role है? This we are going to see. So the main function of central boards shall be to promote cleanliness of streams and wells in different areas of the state. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि स्ट्रीम्स है, जितनी भी जहां से भी पानी का जो आप बोल सकते हो ओरिजिन है, स्ट्रीम्स है जहां पे भी पानी बह रहा है, ओके, उस जगह पे, या फिर वेल्स है जो कुएं हैं जितने भी, उनको क्लीन करना पहला इनका मेन फंक्शन है, ओके। सेकेंड, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। और जो दूसरा फंक्शन है सेंट्रल बोर्ड का वो है, ये है सेंट्रल बोर्ड को या फिर फर्दर स्टेट बोर्ड को ये एडवाइस करना, जहाँ पे भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन से होने से या कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, उसमें एडवाइस प्रोवाइड करना, ओके। Coordinate, third point is coordinate the activities of the state board and resolve dispute among them. जितने भी सेंट्रल बोर्ड का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये भी फंक्शन है कि स्टेट बोर्ड्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना और उनके बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हुआ है तो उसको भी रिजॉल्व करना। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द
to the state board को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये भी एक जो है वो फंक्शन है स्टेट सेंट्रल बोर्ड का। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन engaged or to be engaged in programs for the prevention, control or reduction of water pollution. तो जो लोग वाटर प्रिवेंशन जो ये पोल्यूशन प्रोग्राम के तहत आते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको एंगेज करना, ठीक है, इन सब ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बोर्ड के ऊपर आती है। Organize through mass media a comprehensive program regarding the prevention and control of water pollution. तो सेंट्रल बोर्ड का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास मीडिया के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें कि प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में बातचीत हो या फिर डिस्कशन हो, ताकि वो मास मीडिया के थ्रू एक बहुत बड़े पॉपुलेशन में वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान and cause to be executed a national-wide program for the prevention, control or reduction of water pollution. ठीक है, एक नेशनल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना जिसमें कि हम प्लान करें और कॉजेस बताएं कि हम कैसे वाटर को पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम कैसे उसको वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। Next point is collect, compile and publish technical and statistical data relating to water pollution and the measures devised for its effective prevention and control. तो ये सेंट्रल बोर्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फंक्शन है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसको कंपाइल करे और पब्लिश करे, ओके, जो भी टेक्निकल डेटा प्रेजेंट अवेलेबल हुई है और स्टैटिकल डेटा अवेलेबल हुई है रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन के। Last point is the board may establish or recognize a laboratory or laboratories to enable the board to perform its function. Last जो function है that is जो board है, central board है, वो laboratories एक लैब या बहुत सारे laboratories को क्या कर सकता है, establish कर सकता है ताकि हम जो भी हमने प्लानिंग किया है उसको एग्जीक्यूट कर सके, ओके, परफॉर्म कर सके फंक्शन में। Now we will see we have seen functions of central board. These were the functions of central board. Now we are going to move towards the function of state board. तो state board के क्या functions है? To play, very first function of state board is to plan a comprehensive program for the prevention, control or reduction of pollution of streams, wells in the state. तो पहला जो फंक्शन है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स पर करवाना या प्लान करना जिसके अंदर आएगा कि हम वाटर को पोल्यूशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, है ना, एंड रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, जितना भी वाटर पोल्यूशन हुआ है उसमें कितना कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, और स्पेशली स्ट्रीम्स और वेल के, जैसे जो नदी नाले नहर है जहाँ साफ पानी बह रहा है और जो पोल्यूट हो चुका है उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, रिडक्शन कैसे करें पोल्यूशन में, उसके लिए। सेकेंड पॉइंट इज to advise the state government on any matter concerning the prevention and control or abatement of water pollution. दूसरा है कि स्टेट बोर्ड का ये भी फंक्शन है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करे जो कोई सा भी मैटर है जो कि वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंशन से रिलेटेड है या वाटर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है या जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है उसको अबेंड करने से रिलेटेड है, इन सब के लिए जो स्टेट बोर्ड है वो एडवाइस कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। थर्ड पॉइंट इज टू कलेक्ट एंड disseminate information relating the prevention, control or reduction of water pollution. Okay.
Next comes the point to encourage, conduct, and participate in investigations and research related to the problems of water pollution. Encourage करना स्टेट बोर्ड का ये भी फंक्शन है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज करे और जितने भी प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे, रिसर्च करे रिलेटेड टू जो भी प्रॉब्लम्स आती है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड उन सब के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट इज टू कोलैबोरेट विद द सेंट्रल बोर्ड. स्टेट बोर्ड का ये भी फंक्शन है कि वो कोलैबोरेट करे सेंट्रल बोर्ड से एंड देन दे कैन फंक्शन टुगेदरली. Next point is to inspect sewage or trade effluents works and plans for the treatment. इंस्पेक्ट करना सीवेजेस को जो भी है, ओके, ट्रेड इफ्लुएंट्स जो होते हैं, कितना वर्क हो रहा है, कौन कौन से प्लांट्स हैं ट्रीटमेंट के लिए, इन सब को के बारे में क्या करना, इंस्पेक्ट करना भी जरूरी है. तो ये भी कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड करती है इन स्टेट गवर्नमेंट. To lay down effluent standards to be compiled with by persons while causing the discharge of sewage. Next comes the advise the state government with respect to the location of any industry and its work which is likely to pollute a stream or a well. और अगर ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी कुएं के पास है या किसी स्ट्रीम के पास है और उसका जो भी वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा वो, तो वो कुएं को या फिर स्ट्रीम को या फिर नदी को जो आसपास में है उसके उसको खराब कर सकती है. तो इसके रिलेटेड भी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट बोर्ड एडवाइस कर सकता है. So this were and the last point is the board may establish or recognize a laboratory or laboratories. तो जो स्टेट बोर्ड है वो भी क्या कर सकता है, लेबोरेटरीज बना सकता है और एक लेबोरेटरी या एक से ज्यादा लेबोरेटरीज बना सकते हैं जो कि those who will work towards the control or prevention or protect restoration of water pollution. Okay, so this was all about water pollution. Then silent feature of Water Act, Water Pollution Seas Act, function of Central Board, function of State Board. Now we are going to see Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act क्या होता है? Okay, ये पूरा completely एक new topic है और this is also one of the most important topic, काफी important topic है. तो Wildlife Protection Act. Wildlife, which is a part or and partial of the environment, constitutes the wealth of the nation. It includes wild animals, birds, plants, etc. However, man in the process of progress and development and also for his selfish ends, it causing much damage to forest and wildlife. Wildlife क्या है, हमारा बहुत important part है environment का, हमारे environment का. और जो ये वाइल्ड लाइफ है ना, वो एक बहुत बड़ा धरोहर है हमारे देश के लिए, वेल्थ है, ठीक है, इट्स अ वेल्थ फॉर आवर कंट्री. इसमें वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आ जाएंगे, वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं. ये सारे जो भी आपको फॉरेस्ट में या वाइल्ड एरियाज में मिलेंगे, वो सारे जो भी एनिमल है या प्लांट है या फिर जो भी है, वो किसके अंदर आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, wildlife is nature's gift and is declined as has an adverse effect of ecology and hence there is an urgent need to protect wildlife. तो वाइल्ड लाइफ क्या है, एक तरह से एक गिफ्ट है हमारा नेचर की तरफ से हम लोगों के लिए. बट क्या हो रहा है, ड्यू टू डिक्लाइन इन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इकोलॉजी, तो हमारे को अब बहुत जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें, बचाएं. अब कि अभी भी नहीं बचाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और सारे almost every or most of the species will be in and will become endangered or will be extinguished.
Now we are going to see the silent features of. So, therefore, in order to protect wildlife from destruction, the Indian Parliament passes the Wildlife Act in the year 1972. तो इसीलिए वाइल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पार्लियामेंट के में एक लॉ पास किया, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये एक्ट पास हुआ 1972 में. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्ट. तो ये एक्ट पास हुआ 1972 में, और इस एक्ट के तहत हम प्रोटेक्ट करेंगे सारे जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या प्लांट्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना है. और ये जो एक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया अमेंड किया गया, ओके, अप्लाई किया गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ओके, एक्सेप्ट वन स्टेट ऑफ इंडिया विच इज जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इनका अपना एक वाइल्ड लाइफ एक्ट था ऑलरेडी. Now we are going to see the silent features of Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act के silent features कौन-कौन से हैं, that we are going to see. The act contains 66 sections divided into 7 chapters and 6 schedules. तो जो ये act है, Wildlife Protection Act है, इसके अंदर कितने sections हैं? 66 sections are there, and these 66 sections are divided into 7 chapters and 6 schedules. In 66 जो सेक्शंस है उनको 7 चैप्टर्स और 6 शेड्यूल में डिवाइड किया गया. तो फर्स्ट सेक्शन में क्या है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2. इसमें क्या आता है, जितने भी शॉर्ट टाइटल्स है और डेफिनेशंस है वो चैप्टर 1 में आ जाता है, चैप्टर 1 के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में आ जाता है. नेक्स्ट कम्स द चैप्टर 2 डील्स विद अथॉरिटीज अंडर द एक्ट. चैप्टर 2 बताता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज है बेस्ड ऑन द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, ये चैप्टर 2 डील करता है. चैप्टर 3 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट. जो चैप्टर 3 है वो डील करता है कि कोई भी स्पेसिफाइड प्लांट है, मतलब जो एक्सटिंग्विश होने वाला है या फिर जिसका वैल्यू बहुत हाई है, उसके प्रोटेक्शन के लिए डील करता है. ठीक है, इसमें एक्ट्स जितने भी है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं. Chapter 4 provides for the declaration of sanctuaries, national park and closed area. जो चैप्टर 4 है वो क्या बताता है कि कौन से एरिया को हम सेंचुरीज में डेवलप करेंगे, बना देंगे, घोषित कर देंगे, मतलब नेशनल पार्क बता देंगे, घोषित कर देंगे, एंड क्लोज्ड एरिया हम ऐसे बता सकते हैं. इन सब चीजों पे डील कौन करता है, चैप्टर 4. नेक्स्ट इज चैप्टर 6 डील्स विद सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ जू. जो चैप्टर 6 है वो डील करता है सेंट्रल जू के अथॉरिटी से के रिलेटेड, जितने भी सेंट्रल जू है ऑल ओवर इंडिया उसमें जो जो अथॉरिटी है उससे डील करता है. एंड रिकॉग्निशन ऑफ जू, किसको हम जू कंसिडर कर सकते हैं, उस पे डील करता है चैप्टर 6. नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 5 डील्स विद ट्रेड ऑफ कॉमर्स इन वाइल्ड एनिमल आर्टिकल्स एंड ट्रॉफीज. चैप्टर 5 किससे डील करता है, जो ट्रेड होता है या कॉमर्स जनरेट किया जाता है इन वाइल्ड एनिमल के थ्रू, एनिमल आर्टिकल्स जितने भी छपते हैं या ट्रॉफीज जितनी भी होती है उससे डील करता है. ओके, अगेन चैप्टर 5 डील विथ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इन ट्रॉफीज, एनिमल्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा. चैप्टर 6 सॉरी मैंने चैप्टर 4 बताया आपको, प्लीज चैप्टर 4 एक बार थोड़ा नोटिस करना. चैप्टर 4 बताया मैंने आपको, प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड क्लोज्ड एरिया. के बाद अगेन मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 6 था, नहीं वो चैप्टर 6 नहीं है, दैट इज चैप्टर 4 ओनली, सेकेंड पार्ट, जो सेंट्रल जू वाला है, जिसमें कि सेंट्रल जू के अथॉरिटीज कौन कौन से होंगे और किसको हम सेंट्रल जू कंसिडर कर सकते हैं, ये बताना चैप्टर 4 में ही है. ठीक है, तो चैप्टर 5 क्या डील करता है, deals with trade or commerce in wild animals, animal articles and trophies. Next comes the chapter 6 relates to the prevention and detection of offense.
अगर एनिमल्स के साथ या वाइल्ड लाइफ के साथ किसी भी तरह का यू नो ऑफेंस होता है तो उसको प्रिवेंट करना और उसको डिटेक्ट करना चैप्टर 6 में आता है। नेक्स्ट कम्स द चैप्टर 7 कंटेन्स मिसलेनियस प्रोविजंस। चैप्टर 7 में मिसलेनियस प्रोविजंस आ जाते हैं, जितने भी प्रोविजंस बने हैं जो कि मिसलेनियस है वो आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट heading is authorities. The act empowers the central government to appoint the director and assistant director, wildlife preservation and other officials and employees. Furthermore, it empowers the state government to appoint chief wildlife warden, and an honorary wildlife warden in each district and other officers and employees as may be necessary. ठीक है, तो जो अथॉरिटीज हैं वो क्या क्या होता है, एज पर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर को, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड अदर ऑफिशियल्स को भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, ओके, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को एंड ऑर्डिनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ वार्डन होना चाहिए, और अगर जरूरी है तो अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज भी रखने चाहिए। तो ये सारी चीजों को अथॉरिटीज के अंदर आ जाती है। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है? ठीक है, इट इज कंस्टिट्यूट इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन द सिलेक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरीज, national park, closed areas, etc. for the protection and conservation of wildlife. तो wildlife advisory board जो है वो बताता है स्टेट या यूनियन, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होता है ये वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, ताकि ये स्टेट गवर्नमेंट को बता सके कि हम कौन से एरिया को सेंचुरीज बना सकते हैं, नेशनल पार्क बता सकते हैं या क्लोज्ड एरिया बता सकते हैं, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके और कंजर्व कर सके। इसीलिए वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड होती है। ठीक है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, हंटिंग मतलब वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना। तो द एक्ट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो ये हमारा एक्ट है दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। ओके, नो पर्सन शैल हर्ट any wild animals as specified in the schedules। ठीक है, कोई भी इंसान हंटिंग नहीं कर सकता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ में। However, there are certain exceptions, जबकि कुछ exceptions भी हैं इसमें। ठीक है, the state government may order to kill or wound in good faith any wild animals or self defense or to protect or save another। हालांकि इसमें भी कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे कि रियायत मीन्स कुछ आप कह सकते हो कि some exceptions are there कि जैसे इन केस कोई सेल्फ डिफेंस में है, मतलब किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया और उसने खुद को बचाने के लिए जंगली जानवर को मार दिया, या किसी और को बचाने के लिए जंगली जानवर को मार दिया। ठीक है, या फिर उसका गुड विल था, मतलब कुछ अच्छा करने जा रहा था मगर डेथ हो गई, एनिमल का डेथ हो गई। तो इन सब केसेस में आपके अगर ऐसा हुआ है और ऐसे इन सब कंडीशंस के बीच में किसी एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल का आपसे आपने हॉन्ट कर लिया या फिर आपसे उसकी डेथ हो गई है, तो फिर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। बट दिस शुड बी प्रूव्ड, और ये भी प्रूव होना चाहिए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट अलाउ करती है कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारने के लिए भी फॉर एकेडमिक पर्पसेस, एकेडमिक पढ़ने के लिए या रिसर्च वर्क के लिए भी गवर्नमेंट अलाउ करती है कुछ एनिमल्स को कि हम उसके ऊपर स्टडी कर सके, इसके लिए उनको मारने के लिए परमिशन देती है। सो दिस कम्स ऑल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1972 में,
इसके साइलेंट फीचर्स में इस एक्ट के तहत 66 सेक्शंस है और इन 66 सेक्शंस में 7 चैप्टर्स है और 6 शेड्यूल्स है। ओके, अथॉरिटीज है, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड होता है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल क्या है और इसके अगर ऐसा करने से क्या होता है और कौन कौन से कंडीशन में आपको एक्सेप्शन मिल सकता है ये भी मैंने बता दिया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सेंचुरीज, नेशनल पार्क, रिकॉग्निशन ऑफ जूस, ये सब हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। So that's it for today's class.